Hi students, our online classes has been started from 11 o'clock, class 12 narration part 5, 1st June. We are going to study present perfect continuous. Sorry. Yeah, close. Hi students, in last video you have seen present perfect. I told you that in present perfect has have is there and that will be changed in had. There is only one auxiliary verb had in the past perfect. Now we are going to study narration part 5, 1st June, present perfect continuous. You can see perfect is written above, it was left out. Now present perfect will be changed in past perfect continuous. Present perfect continuous will be changed in past perfect continuous. And its present perfect continuous structure is subject, has, have, been, verb, first form with ing and object. And past perfect continuous subject had been, verb with ing and object. This is a structure of present perfect continuous. Subject, had, been, verb, first form with ing and object will be there. I hope you understand the structure of both the sentences. दोनों के स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे. यहाँ हैज़ बिन, हैव बिन होगा और यहाँ ओनली वन हैड बिन होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. अब हम लोग एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको अप्लाई करेंगे और समझेंगे हाउ टू चेंज द डायरेक्ट इन इनडायरेक्ट नरेशन. सीता सेड आशा हैज बीन राइटिंग फॉर 2 hours. This is your given sentence and you have to change. Sita said Asa has been writing for 2 hours. Sita said that. ये इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे तो इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए दैट यूज़ करते हैं. दैट इज़ अ कंजक्शन हियर. आशा को कोई चेंज नहीं करना. आशा इज आशा. हैज़ को हैड में चेंज करेंगे. केवल एक ही चेंज करना है. हैज़ को हैड में. बिन विल बी देयर. राइटिंग विल बी देयर. फॉर 2 hours भी ऐसे ही रहेगा. देयर इज़ नो चेंज, एनी अदर चेंज इन दिस सेंटेंस. तो सीता सेड दैट आशा हैड बिन राइटिंग. केवल हैज़ को हैड में बदलना था और कुछ भी नहीं करना था पूरे सेंटेंस में. हैज़ बिन राइटिंग फॉर 2 hours. So in this way this sentence is ready. Now we'll see next sentence. He said to me, the students have been learning their lesson. This is learning. Learn. Only learn is written, wrong is written there. You have to improve. Learning. This is learning. Learning means याद करना. Learning. Learning their lesson since morning. तो अब इसको हम बनाएंगे. आई हैव नॉट रिटन हियर बट आई विल टोल्ड यू हाउ टू चेंज. ही सेड टू मी. सेड टू मी को हम टोल्ड में बदलेंगे क्योंकि ये एक सिंपल सेंटेंस है. यहाँ कोई ऐसा चेंज नहीं है. तो सेड टू, जब भी सेड के पास टू होगा वो हमेशा टोल्ड में बदलेगी. ही टोल्ड मी. यहाँ जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगी तो दैट लगाएंगे. दैट द स्टूडेंट्स में भी कोई चेंज नहीं होना है. हैव को हैड में बदलेंगे. हैव यहाँ पे चाहे सिंगुलर हो आपका सब्जेक्ट चाहे प्लूरल हो आपका सब्जेक्ट, हैड ही लगना. देयर इज़ नो कन्फ्यूज़न अबाउट हैज़, हैव, हैड. हैड एकमात्र है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में और कुछ भी नहीं है. यहाँ सिंगुलर्स के साथ और प्लूरल्स के साथ दोनों के साथ हैड ही लगना है. So there should be no confusion in your mind. Everything should be clarified. Have, has, will be changed in had. Been learning their lesson. चूँकि स्टूडेंट्स है तो देर भी देर ही रह जाएगा. लेसन सिंस मॉर्निंग. कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ देर क्यों है, क्योंकि स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है इसलिए देर है. लेकिन चूँकि हमने स्टूडेंट्स में भी कोई चेंज नहीं किया है इसलिए देर में भी कोई चेंज नहीं करेंगे. इट विल बी रिटन एज इट इज़. इसको जैसे है वैसे ही लिख देंगे. ओनली देयर इज ओनली वन चेंज. हैव विल बी चेंज्ड इन हैड. एंड दिस द सेंटेंस विल बी. ही टोल्ड मी दैट
the students had been learning their lesson since morning. This will be the sentence, this will be the structure of the sentence. I have not written the answer of this question at this blackboard. You have to make it yourself, and I hope you understand well. कुछ भी करना नहीं है आपको, बार बार पता, अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू इन द क्लास दैट सेट टू, जब भी सेट के पास टू होगा इट विल बी चेंज इन टोल्ड, and inverted comma is removed. That's why that students, this is plural noun, there will be no change. Have will be changed in had, been, learning. There means student is plural, that's why their lesson since morning. I hope you understand well, because there is no change, any specific change is not there. केवल एक मात्र चेंज है, ओनली वन चेंज है, have. That has been changed in had. Present perfect continuous is always changed in past perfect continuous. और उसके पास एक ही auxiliary है. So this sentence, I hope you understand how it is working, how it is going. Now he said to me, has the rain been falling since the daybreak? Now you will see, said to है यहाँ. आपको मैंने बताया कि सेट के पास टू होगा तो टोल्ड में बदलेगा, बट दिस इज अप्लाइड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस. दिस इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग विद ऑक्सिलरी. जब भी इंट्रोगेटिव ऑक्सिलरी से स्टार्ट होता है हम इफ या वेदर लगाते हैं. ही आस्क्ड मी, इफ या वेदर, दोनों में से कोई एक, वन ऑफ दीज टू अकॉर्डिंग टू योर विश, अपनी इच्छा के अनुसार आप लगा सकती हैं. बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है. ही आस्क्ड मी इफ वेदर, जो चाहे वो लगा ले, मैंने दोनों लिख दिया है ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो. ऑब्लिक इज देयर. द रेन हैज़ को हैव को थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे हम. जब भी ऑक्सिलरी हो, इंट्रोगेटिव हो, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ हो, हम उसके हेल्पिंग वर्ब को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं. अगेन एंड अगेन आई टोल्ड यू द सेंटेंस, the structure which will be there, it will be subject, verb and object. अब इसके बाद जो हमारा सेंटेंस बनेगा वो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का बनेगा. अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लेंगे, इसलिए द ही आस्क्ड मी इफ द रेन, हमारा सब्जेक्ट द रेन है, द रेन. अब हम हैव की बात करेंगे, हैज़ की बात करेंगे, तो हैज़ विल बी चेंज इन हैड. Been as it is, falling as it is, since the daybreak it is as it is. There is no any other change in the sentence, only has will be changed in had. The rain में भी कोई change नहीं होगा और बाकी sentence as it is it will be written. I hope you understand. The master said to the lazy servant, what have you been doing in the backyard since morning? मास्टर ने लेजी सर्वेंट से पूछा कि तुम आंगन में सुबह से क्या कर रहा है. द मास्टर, आपको कुछ नहीं करना, आप आंसर दीजिए. तो लिखेंगे द मास्टर आस्क्ड, सेड टू है, आस्क्ड में बदलेगा, आस्क के साथ टू का प्रयोग नहीं होता है. द लेजी सर्वेंट, if, oh sorry, if will not be there because there is question words. Question word, what is there, what is conjunction, question word itself works like conjunction, so what you have to write there, what. अब now you have को थोड़ी देर के लिए छोड़िए, you की बात करते हैं तो you किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, you चेंज होगा लेजी सर्वेंट के अकॉर्डिंग. लेजी सर्वेंट ही होगा, ही. अब हम हैव की बात करेंगे तो हैव को हम हैड में चेंज कर देंगे. व्हाट ही हैड बीन, बीन तो बीन ही रहेगा, डूइंग डूइंग रहेगा, इन द बैकयार्ड. In this way your sentence is ready here, that the master asked the lazy servant. सेट के साथ टू लगता है लेकिन आस्क के साथ टू नहीं लगता है, टोल्ड के साथ टू नहीं लगता है.
आप लोग बार बार यही गलती करती हैं कॉपियों में कि सेड के साथ टू लगाती हैं, आस्क के साथ भी टू लगाती हैं, टोल्ड के साथ भी टू लगाती हैं। तो ये आप गलती ना करें। मास्टर आस्क द लेजी सर्वेंट वॉट के क्यों लगा, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड खुद ही कंजक्शन का काम करते हैं, सो देयर इज़ नो नीड ऑफ एनी अदर कंजक्शन। तो वॉट हो गया, और हम हैव को छोड़े थे थोड़ी देर के लिए, यू की बात कर रहे थे। यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू लेजी सर्वेंट इज जेंट्स, लेडीज इट मे बी बट इट इज़ कॉमन जेंडर, तो ही में चेंज कर दिया। एंड हैव विल बी चेंज इन हैड बीन डूइंग इन बैकयार्ड, एंड देयर इज़ नो अदर एनी अदर change in the sentence, so you have to change according to the sentence. I hope you understand. Now we'll talk about the question I have given you, exercise I have given you. किताब से लिखा हुआ, रोक के कैंसर टेस्ट करो, रोक लो क्या। He said to, I have given you exercise 2 yesterday for homework. Now I am giving you answer of exercise 2 of some sentences, not total, of some sentences. Now see, let's first one. He said to me, I have completed my work. So he told me that I had completed my work. आई फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, तो ही हो जाएगा ये, और ये हिज हो जाएगा। तो ही टोल्ड मी दैट ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, तो आई ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, और ये जो माई है वो हिज हो जाएगा। तो ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क। ही सेड यू आर स्टूडेंट, तो ही सेड दैट ही वॉज अ स्टूडेंट। इसको हम थर्ड पर्सन में चेंज कर देंगे, तो ही वॉज हो जाएगा। द टीचर सेड टू मी यू ऑलवेज टेल अ लाई। द टीचर टोल्ड मी दैट, अब यू को मी के अकॉर्डिंग बदल लेंगे, तो आई ऑलवेज टोल्ड अ लाई। सेकेंड पर्सन में टेल को करेंगे तो टोल्ड हो जाएगा। आई सेड टू हिम यू आर अ गुड बॉय, तो आई टोल्ड हिम दैट, यू को चेंज करेंगे हिम के अकॉर्डिंग, तो ही हो जाएगा। ही आर को वॉज अ गुड बॉय, तो आई टोल्ड हिम दैट ही वॉज अ गुड बॉय। फिफ्थ, द बॉय सेड टू मी, बॉय सेड टू मी है, और ये सिंपल सेंटेंस है, तो टोल्ड होगा द बॉयज टोल्ड मी दैट। वी को हम चेंज करेंगे द बॉयज़ के अकॉर्डिंग। आई और वी हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो बॉयज़ के अकॉर्डिंग वी को दे में चेंज करेंगे, थर्ड पर्सन में। दे शैल को शुड में, दे शुड प्ले अ मैच इन द इवनिंग। इन दिस वे। सिक्स, ही सेड टू यू, कौन सा होता है, सिक्स ना। He said to you, you are free to go anywhere. तो she told you that, you के अकॉर्डिंग बदलेगा तो you ही रह जाएगा। you are को हम बदल देंगे वर में, free to go anywhere। तो she told me that you were free to go anywhere. Seventh, he said to me, I am an honest man. तो he told me, क्योंकि एक सिंपल सेंटेंस है, तो सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। ही टोल्ड मी दैट, अब आई को हम ही के अकॉर्डिंग बदलेंगे, तो ही हो जाएगा। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। तो इन दिस वे दिस सेंटेंस विल बी, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन। एर्थ, हरी सेड टू श्याम, आई शैल ऑलवेज हेल्प यू। हरी टोल्ड श्याम, टोल्ड क्योंकि सेड टू है और सिंपल सेंटेंस है, दैट्स वाई टोल्ड। हरी टोल्ड श्याम दैट, आई को हम चेंज करेंगे हरी के अकॉर्डिंग, तो ही, और शैल को शुड, ही शुड हेल्प हिम, और इस यू को श्याम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, तो श्याम हो जाएगा हिम। इन दिस वे हरी टोल्ड श्याम दैट ही शुड ऑलवेज हेल्प हिम। ये हिम श्याम के लिए आ रहा है, यू जो है श्याम के अकॉर्डिंग बदलेगा, और आई जो है हरी के अकॉर्डिंग बदलेगा। जेलर सेड द प्रिजनर डाइड, this sentence is belonging to past indefinite. We will discuss this sentence later. He said to me
you played well. ये भी sentence past indefinite में है. We will discuss both these sentences later after teaching it. He said to them, you are cruel. तो he told them that you को them के according change करेंगे तो they हो जाएगा. They were very cruel. Sentence होगा he told them that they were very cruel. She said to us, you have done well. She told us that you को us के according change करेंगे तो we had done well. So in this way we have discussed all these sentences. Rest will discuss after some time in next video. This is not possible to send you very long video. This is very exhaustive and impossible. So that's all. Note it down in your fair copy. That's all. This is enough for today.